से रॉन्ग है, ये गलत है, अपनी इंटरप्रिटेशन करके फॉलो करना चाहिए। PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर मेरे ख्याल में 807 है, ऐसा कुछ करके पेज है, लिखा हुआ है डायरी में मेरे पास। तो ये चीज़ भी है। अब देखें ना, अब जो थ्योरी है, फॉर एग्जांपल है, अब आपको परमिशन मिल गई कि आप अपने जहन को भी अप्लाई करें, जो चीज़ चलते चली आ रही है उसी को ना करें फॉलो, ठीक है ना। तो ये एक प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव जो स्टूडेंट्स की निशानी है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद पेज नंबर 185 पे इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। ये भी आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। ये एक जहन में आप लोगों के लॉ गेट के कब है पेपर, MCQs कब है, शेड्यूल कब है? 25 ऑफ दिस मंथ ना, 25 ऑफ दिस मंथ में इंशाल्लाह लजीज आप सब पास हो जाएंगे, उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि ये आप लॉ गेट के पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें। अगर आप लोगों ने सीरियसली वकालत करनी है, जजेस बनना है, कुछ करना है, तो ये आपको बाकायदा बाइबल के तौर पे सीने के साथ लगा के रखनी है। आप कंसेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आप बाद में ना अच्छी जजमेंट दे सकते हैं, ना अच्छी वकालत कर सकते हैं, ना अच्छे आर्गूमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पीस ऑफ एडवाइस ये है कि आपने इस लॉ गेट के पेपर के बाद भी इसको टाइम एंड अगेन स्टडी करना है, रिफ़्रेश करते रहना है। रिफ्रेशर कोर्स में खुद बैठ के ग्रुप स्टडी में इसको, इसके कंसेप्ट को रिजोविनेट करना है, रिफ्रेश करना है अपने माइंड के अंदर कि क्या चीज़ क्या कही गई है, किस तरह की गई थी। नंबर 1 वो कहते हैं कमांड, जनरल ऑर्डर इशूड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर, दैट इज कॉल्ड कमांड। हेडोनिज्म, अवॉइड पेन एंड गेन प्लेजर। ऑबिटर डिक्टा, सेइंग बाय द वे। ये वो तमाम के तमाम कंसेप्ट हैं जिनके पीछे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं, डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में, मगर ये आसानी के लिए बता दिए हैं कि इनका मतलब क्या है। मीनिंग देयर बाय कि MCQs के अंदर में से कोई अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो आपके जहन में ये होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अनाइमस पोसिडेंडे, इंटेंशन और डिज़ायर टू पोजेस। फिर इसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म, greatest happiness for the greatest number of people. Justice, distribution of rights and duties among the members of the society. Command, theory of law, law is command of sovereign enforceable by a sanction. Acha, ration decidendi, reason for the decision. Corpus, possession, the relation between a person and a thing which he possesses. Censorial jurisprudence, the study of law as it ought to be. De facto, literal meaning, it means of or in fact. Autonomous legislation, definition, a kind of subordinate legislation empowering the autonomous bodies like universities, societies to make bylaws, by rules for the purpose of regulating their internal conducts is called autonomous legislation. Sanctioning right, definition, those rights which are arising out of the infringement of the primary rights, that is right to sue. Legal justice, it means the equitable distribution of benefits and burdens, rights and duties of society among its members by a rule of law is called a legal justice. Natural justice, those principle of justice which has been fixed by the nature as to the conduct of human being living in societies and which can be accessed through the ration of human being is called natural justice. Physical or scientific law, the portion of law of the nature which is regulating the behavior and relation among universals other than the human beings. Newton's law of motion, law of gravitational force, etc. Matriarchal theory, definition, a theory as to social organization which suggests that in the beginning of human race the family was headed by a mother or the oldest female, यानी कि maternal से निकला है, ठीक है। Analytical jurisprudence, that kind of jurisprudence which is studying the law in the analytical way. Therefore only positive law can be studied analytically. Hence the province of analytical jurisprudence is limited to positive or man-made law. It is the study of law as is.
पॉजिटिव का क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ लॉ एज इज और मैन मेड लॉ is called the positive law. Sovereignty means the supreme power of a state vested in an individual or a group of individuals known as sovereigns. Ration decidendi, reason behind decision. Metaphysical sanction. Metaphysical sanction means the fear in the hearts of individuals that if they disobey any divine rule, then the divine power shall punish them for their wrong deeds. Ethical jurisprudence, it is a kind of jurisprudence which studies laws as it ought to be. In other words, ethical jurisprudence is the study of ethical or moral law. Law in abstract sense. The law in abstract sense means the fundamental principles and general notions of law common to all legal systems or a particular legal system. Legislature, literal meaning, derived from two Latin words, legis, which means law, and latum, which means to make. Presumption. Presumption is a legal advice by which judges draw a particular inference as to the existence or non-existence of a particular fact from other facts unless and until the existence or non-existence of that fact is proved or disproved. स्टूडेंट्स, ये इनके कंसेप्ट थे। एक और चीज़ मैं अपने तजर्बे से आपको बता दूं, एमसीक्यूज़ के अंदर नॉर्मली जुरिस्प्रूडेंस में जो तैयारी करने की चीज़ है वो, अगर आपके पास जुरिस्प्रूडेंस की बुक हो, डिटेल में ना पढ़ें, उनके जो कंटेंट्स हैं इंडेक्स के, उनको वन बाय वन गो थ्रू करें। ये मेरा तरीका है। लेट्स से हम बात करते हैं, ये भी सैलमेंट की बुक के उनकी प्रिंसिपल्स पे लिखी हुई किताब है। नंबर 1 पे इन्होंने चैप्टर 1 नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, अब आप पढ़ें, इंट्रोडक्शन है, ओल्पाइन डेफिनेशन ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, हॉलैंड है, सैलमेंट है, डिवीजन है, स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, पढ़ते चले जाएं। इसके जितने कंटेंट्स हैं इनको आप जहन में रखें। अच्छा, काइंड्स ऑफ लॉ में क्या है? काइंड ऑफ इंपेरेटिव लॉ है, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है, नेचुरल लॉ है। ये पूरी की पूरी चीज़ आपको इंडेक्स में बताई गई है। तफसील पढ़नी होगी तो वहाँ पढ़ेंगे। हम यहाँ पे एलएलबी के स्टूडेंट नहीं है, हम लॉ गेट के स्टूडेंट्स हैं, राइट? ठीक है, हमारे जहन में कहीं ना कहीं 20%, 10%, 5%, 25% जो स्टूडेंट्स के कंसेप्ट होंगे। ठीक है, थोड़े से रिकॉल करने की ज़रूरत है। अब ये रिकॉलिंग का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये फटाफट आप रिकॉल कर दें। एमसीक्यूज़ पढ़ें, एमसीक्यूज़ को जहन में रखें, आप जो जो उनके आंसर्स हैं 2-3 बार गो थ्रू करें, ग्रुप स्टडी करें, मगर आखिर में जाते हुए इनको भी एक नज़र डाल दीजिएगा। यू नेवर नो, एमसीक्यूज से अगर कोई लिखे हुए आ गए तो फाइन, नहीं आए तो कुछ और कंसेप्ट लीगल जुरिस्प्रूडेंस से उन्होंने देने होंगे तो आपके जहन में होगा कि काइंड्स ऑफ लॉ कितने हैं। अच्छा जी, जो डेफिनेशंस ऑफ लॉ कितनी तरह की हैं, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस क्या है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लॉ एंड मोरालिटी, सोशल इंजीनियरिंग एंड लॉ, ठीक है, स्टेट क्या है, सॉवरेनिटी को क्या कहते हैं, लॉ एंड सोर्सेज, लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, judicial precedents, customs, equity as a source of law, other sources of law, rights and duties, ownership, the concept of possession, legal persons, titles, liabilities, intention and negligence, strict liability and vicarious liability, law of property, law of procedure, problem and solution of the jurisprudence. अब ये जितने मोटे मोटे कंसेप्ट हैं, बेसिकली 5 क्वेश्चंस तो हैं हमारे पास नेसेसरी, और मैं समझता हूँ सिर्फ ड्राई होने की बुनियाद के ऊपर स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर आप जितने चैप्टर्स आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, अगर आप उनको कंपेयर करें मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस से, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस कंपैरेटिवली लेस डिफ़िकल्ट है देन दी मॉडर्न जुरिस्प्रूडेंस। मगर आप उसको स्ट्रीमलाइन लेके पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स में लेट मी टेल यू, आपको सारी ज़िंदगी जब तक कि आपकी लॉ से, शोबा कानून से वाबस्तगी है, ये आपको साथ रहेगी। तो क्यों ना इसको अटेम्प्ट करें, इसको पढ़ें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 साल के बाद ये आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। और ये हर एक आपके साथ इशू नहीं है, ये हमारे पास जर्नली इशू यही है कि उसूल कानून को कोई नहीं अटेम्प्ट करता, कोई नहीं पढ़ता।
जब हम अपनी लॉ क्लासेस करा रहे थे लॉ गेट्स की, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने कहा सर कोई मिल जाए मुझे सूले कानून पे या सूले जो है ना इस्लामिक कानून पे कोई पढ़ा ले, तो हर एक ने इनकार कर दिया कि जूरिस्प्रूडेंस हम नहीं पढ़ा सकते, आई एम सॉरी, हमारी किसी और चीज़ पे लेक्चर दे दें। तो हमने कहा ठीक है यार, हम खुद ही पढ़ा लेते हैं, फिर कोई इतना इशू तो नहीं है। और ज़ाहिर है फिर आप किसी ने कुछ वॉलंटियर ही नहीं किया। मैंने कहा स्टूडेंट है, ज़ाहिर है हमने इतनी प्रैक्टिस की है 25 साल, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज़ाहिर है मेरा एक दर्स व तदरीस का भी बैकग्राउंड है, तो उससे एक अच्छे अंदाज में हम पढ़ा सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों के सामने ही, तो बाद में पता चला कि हमने कैसा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है हमारे पास पेज नंबर 187 पे डेफिनेशंस हैं, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस डेफिनेशंस। इनको आपने काइंडली गो थ्रू करना है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। ये हमने जो अभी पढ़ा ना, या बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ डेफिनेशन हमने वहां पढ़ी हैं, यहाँ पे भी उन्होंने डिफाइन कर दिया इन चीज़ों को, ठीक है। आपने डेफिनेशन से अपने फेवर की चीज़ों को कंस्ट्रू करना है, एक्सट्रैक्ट करना है डेफिनेशंस में, ठीक है। डेफिनेशन का तरीका पता है ना, कैसे याद करते थे, कैसे होता है? लैंग्वेज पूरी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, आपने चीज़ों को इंटरलिंक कर लेना है। जैसे मैंने अभी कहा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, सोशियोलॉजिकल में आपने कहीं पढ़ा होगा ना कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले सवाल को पढ़ें, आधा जवाब सवाल के अंदर होता है, पढ़ा है ना। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आपका आधा कंसेप्ट है, सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, तो आपने लिंक कर देना है कि स्कूल ऑफ थॉट, सोशियोलॉजिकल की स्टडी को सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। इसी तरह लाइकवाइज नेचुरल जस्टिस, नेचर से रिलेटेड कोई कानून होगा तो नेचुरल जस्टिस होगा। आप एक नज़र इसको पढ़ लें, जो मेन चीज़ है जैसे इन्होंने कहा, तो उसको इंटरलिंक कर दें, आपको चीज़ याद हो जाएगी। इंग्लिश की कमांड आपके ऊपर होगी, आप खुद उसको बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है।